So today we will move further. We have seen boilers, their construction and working. Now we will be looking at boiler mountings and accessories. So while studying the boiler, I have shown you various devices attached on the boiler. You can see this is an example of Babcock and Wilcox boiler. You can see there are many things attached on the boiler like pressure gauge, water level indicator, safety valve, then steam stop valve, then superheater, okay, blow off valve. Yeah. Okay. So why they are attached there? Okay. So there are basically two major classification of devices. One is boiler mounting. First one is boiler mounting. So boiler mountings are basically different fittings and devices which are necessary for the operation and safety of a boiler. So mountings क्या होगी? These are necessary devices for safe operation of boiler. Now how to understand this? Okay, why we need the devices? So to generate steam, what we need? We need water, and we are using boiler. So it is enclosed vessel, okay, filled with water. Okay. So now to generate the steam, I need heat, जो हम फ्यूल सप्लाई करके दे रहे हैं. So I need only these two things, water and heat, to generate the steam. Okay. अगर ये दोनों चीजें होगी तो स्टीम जनरेट हो जाएगी. बट इज दिस डिवाइस सेफ? क्या ये सेफ रहेगा? बिकॉज एवरी बॉयलर हैज प्री डिफाइंड प्रेशर लिमिट. बॉयलर जब हम डिजाइन करते हैं तो हम उसे पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिजाइन करते हैं कि 25 बार या 30 बार या 50 बार तक प्रेशर वो ले सकता है. उससे ज़्यादा अगर प्रेशर होता है तो वो बर्स्ट हो जाता है. एज वेल एज उसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो भी डिजाइन होता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल. ओके, उसका कुछ कंपोजिशन होगा. अगर टेम्परेचर कुछ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है देन देर आर चांसेस ऑफ ओवर हीटिंग एंड लाइक अदर थिंग्स. So by providing just these two things, water and heat, we will generate the steam, but this device will not be safe for operation. इसके आसपास कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करेगा अगर सिर्फ ये दो चीजें लगाई होगी तो. So for safe operation, okay, to avoid bursting of this boiler shell, because इसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा होता है. अगर ये फट जाएगा तो आसपास जो भी काम करने वाले वर्कर होंगे वो उनके लिए सेफ नहीं रहेगा. ओके, उनका डेथ भी हो सकता है, इतना प्रेशर होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है. दे मे बर्न बिकॉज ऑफ दिस स्टीम, हॉट स्टीम. ओके, सो we need to make this device safe. Okay, so to make this device safe, we are attaching some attachments or devices. Okay, so these devices are necessary for safety of boiler, okay, which are called boiler mountings. So according to IBR, Indian Boiler Regulations, these are the following suggestions given by RBR that these many things should be used for safe operation of boiler. Okay. We will look all these devices in detail. Okay, हम सबका डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बॉयलर माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज के अंदर. तो व्हाट आर द नीडेड डिवाइसेस और माउंटिंग्स? सेफ्टी वाल्व्स. okay, टू सेफ्टी वाल्व्स आर जनरली प्रिफरेबल बिकॉज अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा वर्क करेगा. तो सेफ्टी वाल्व उसके ऊपर अटैच किया गया होना चाहिए, बिकॉज अगर अंदर स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि अगर मैं कोई अरेंजमेंट नहीं देता हूँ स्टीम को एस्केप करने के लिए तो बॉयलर फट जाएगा कुछ टाइम के बाद. ओके, सो सेफ्टी वाल्व्स आर प्रोवाइडेड
to let some steam escape in case of pressure goes beyond the design pressure. हमने जो डिजाइन किया होगा प्रेशर उससे ज्यादा जाएगा तभी सेफ्टी वाल्व है वो वर्क करेगा और बॉयलर में से थोड़ा स्टीम है उसको बाहर निकाल देगा. Okay, so as soon as the steam escapes the boiler, the pressure inside the boiler will get reduced. Okay, again safety region में आ जाएगा हमारा pressure. Then water level indicators. बॉयलर के अंदर कितना पानी है, वाटर का लेवल क्या है बॉयलर शेल के अंदर, वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है. बिकॉज क्या होगा, सपोज आई हैव नॉट अटैच दिस वाटर लेवल इंडिकेटर, सपोज मैंने ये नहीं लगाया है, तो क्या होगा अंदर बॉयलर शेल के अंदर पानी कितना है वो मुझे पता ही नहीं चलेगा. मे पॉसिबल दैट ऑल द वाटर मे गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ऐसा भी हो सकता है. मुझे पता भी नहीं चलेगा कि अंदर पानी है या नहीं है. तो क्या होगा अगर वाटर का लेवल डाउन हो जाता है तो ये जो बॉयलर शेल जो है वो गर्म होने लगेगा. बिकॉज क्या होगा, यहाँ नीचे से जो भी हीट आ रही है वो हीट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम. अब अगर अंदर पूरा का पूरा स्टीम होगा, वाटर होगा ही नहीं, तो क्या होगा, जो भी हीट आ रही है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट वाटर अंदर अवेलेबल नहीं होगा. तो ये जो पूरा असेंबली है बॉयलर का वो पूरा गर्म होने लगेगा. ओके, एंड इस टेम्परेचर में गो बियॉन्ड द डिजाइन टेम्परेचर. तो टू अवॉइड द ओवर हीटिंग ऑफ द बॉयलर we need this water level indicator. अंदर पानी का लेवल मेंटेन होना चाहिए, otherwise overheating will start. Then a pressure gauge. अभी बॉयलर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बॉयलर जो है उसका शेल कोई पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिजाइन किया जाता है. अगर प्रेशर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉयलर फट सकता है. So to track the pressure we need pressure gauge, कि बॉयलर के अंदर का प्रेशर अभी कितना है वो हम जान सकते हैं. Then steam stop valve, जो बॉयलर के अंदर का स्टीम है उसको निकालने के लिए यूज होता है. फीड चेक वाल्व इज नेसेसरी टू सप्लाई द वाटर इनसाइड द बॉयलर. फीड चेक वाल्व की मदद से हम बॉयलर के शेल के अंदर पानी सप्लाई करते हैं. देन ब्लो ऑफ कोक. ब्लो ऑफ कोक क्या करेगा, बॉयलर शेल के बॉटम पोर्शन में होगा, यहाँ पे नल टाइप होगा. ओके, इसके अंदर से पूरा जो मड है वो बाहर निकल सकता है. अगर हम मड को बाहर नहीं निकालते हैं, इम्प्योरिटीज को बाहर नहीं निकालते हैं, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद दैट इम्प्योरिटी विल सेटल डाउन द बॉयलर, इनसाइड द बॉयलर. तो पूरा इम्प्योरिटी का एक लेयर बन जाएगा अगर हम इम्प्योरिटीज को निकालते नहीं है तो. एंड दैट इम्प्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरहीटिंग फॉर बॉयलर. ये एक और फैक्टर है जो ओवरहीटिंग के लिए जवाबदार है. एंड इंस्पेक्टर्स टेस्ट गेज manhole is required for maintenance work. Okay, it is necessary to maintain the boiler. Okay, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये रिक्वायर्ड होता है कि इसका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए. बिकॉज इफ यू डोंट डू मेंटेनेंस तो अंदर का कोई भी पार्ट डिफेक्टिव होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा. तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द manhole is provided. Okay, so a man can enter inside the boiler and can carry out the maintenance work. Then mud holes and side holes. So these are the necessary devices required for safe operation of boiler. अगर इसमें से हम कोई भी मिस करते हैं, कोई भी डिवाइस अटैच नहीं किया होता है, then there are chances of bursting of boiler or failure of boiler. So keep this thing in mind. Mountings are devices which are necessary for safe operation of boiler or safety of a boiler. Next is boiler
एक्सेसरीज। ओके, अभी बॉयलर के ऊपर कुछ ऐसी डिवाइसेस भी अटैच होती है कि विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ अ बॉयलर, बट बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। those devices are called accessories. Okay, they are in excess and they are auxiliary, not necessary. बॉयलर एक्सेसरीज आर नॉट नेसेसरी, वो कंपलसरी नहीं है ये रखना। अगर आपको बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाना है तभी आपको ये बॉयलर एक्सेसरीज यूज करना है। ओके, ये ऑप्शनल है, ये आप एफिशिएंटली वर्क करवाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस डिवाइसेस अगर आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है या कुछ भी होता है। ओके, सो दीज आर ऑप्शनल। ये जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था बॉयलर माउंटिंग्स, दे वर नेसेसरी। ओके, ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपको बॉयलर का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। You must know that to install a boiler and operate a boiler, you need a safety certificate from an engineer. Okay, बॉयलर सेफ्टी इंजीनियर करके आता है, उसके उसके पास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। वो सर्टिफिकेट तभी इश्यू करेगा जब ये सारे डिवाइसेस आपके बॉयलर के ऊपर अटैच होंगे एंड प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होंगे। बॉयलर का सर्टिफिकेट, सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए ये डिवाइसेस नेसेसरी नहीं है, ये आप एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए यूज कर रहे हैं एक्सेसरीज। ओके, so these are auxiliary plants or parts required for steam boilers for their proper operation and to increase the efficiency of the boiler. And which are these devices? Feed pumps, कितनी कैपेसिटी का लगाना है वो सब, इंजेक्टर्स, इकोनोमाइजर्स, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर एंड स्टीम टैप। Okay, these terms are new for you right now, but as soon as we progress in this chapter, you will get used to these names. In fact, we have looked at this device, superheater, in Babcock and Wilcox boiler. अगर आपको याद हो, this device is a superheater. So हमने यूज किया है वो। So these are the boiler accessories. So now let's have a look at the mountings and accessories one by one. Okay, so first of all we'll look at the pressure gauge. So pressure gauge comes under the boiler mountings. It is a necessary device. And what is the function of a pressure gauge? It indicates the pressure of steam in boiler. Okay, बॉयलर का जो शेल है, बॉयलर शेल, उसके अंदर का प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए हम रिक्वायर्ड है बॉयलर माउंटिंग, प्रेशर गेज। तो वेयर इट इज लोकेटेड, प्रेशर गेज का लॉजिकल लोकेशन क्या होना चाहिए? So if you see, in every boiler, pressure gauge is mounted on the top portion of any boiler. आप कोई भी बॉयलर ले लीजिए, हमने जो 3 बॉयलर डिस्कस किए हैं, लैंकिशायर बॉयलर, बैबकॉक, विल्कॉक्स, कोचरन, आप कोई भी बॉयलर ले लीजिए, उसमें प्रेशर गेज का जो लोकेशन होगा वो बॉयलर शेल के टॉप पोर्शन में होगा, जहाँ पे स्टीम अवेलेबल होगी। Because actually steam is pressurized, okay, because of that this pressure gauge is showing reading. So location of pressure gauge is on the top of boiler shell or top portion of boiler shell. If it is asked in exam, you should write this. So this is an image of a pressure gauge. This is how a pressure gauge looks. यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं, उसकी मदद से हम उसको बॉयलर शेल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन सी द डायल ऑल्सो, कैन सी द डायल ओवर हियर, कि उसके ऊपर कुछ रीडिंग दिया गया है, एंड दिस इज इंडिकेटेड इन
बार। ओके, प्रेशर का जो भी यूनिट आता है, बार, केजी पर मीटर स्क्वायर, लाइकवाइज, ओके, वो कोई भी प्रेशर यूनिट इंडिकेट किया गया होता है। कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बार दिखाया गया है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म वर्किंग बिहाइंड दिस डायल। ये जो आपको डायल दिख रहा है उसके पीछे ये वाला मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। तो लेट्स हैव लुक एट हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे स्टीम स्पेस दिखाया है फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टीम स्पेस मीन्स बॉयलर के जो टॉप पोर्शन में होता है वो वाला स्पेस जहाँ से स्टीम कांटेक्ट में आती है। एंड this portion is actually pressure gauge. So pressure gauge is connected with steam space with the help of this U tube. Okay. U शेप का ट्यूब आता है जिसको सिफोन बोलते हैं, उसके अंदर वाटर फिल किया होता है। This U tube or this water tube is actually used to avoid direct contact of this pressure gauge with steam space, because यहाँ पे जो भी steam है, ओके, वो गर्म है, हाई टेम्परेचर पे है। अगर ये हाई टेम्परेचर स्टीम डायरेक्टली प्रेशर गेज के साथ कांटेक्ट में आएगी तो प्रेशर गेज के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको डैमेज हो सकता है, दे मे गेट डैमेज। ओके, so to avoid the damage to this pressure gauge, we are actually installing a water tube between these two. So now concentrate on this pressure gauge only. So what are the different components of a pressure gauge? First and main component is this Borden tube. This tube, this C-shaped tube is the Borden tube. Its cross section will be like this, oval shape. इनिशियल क्रॉस सेक्शन उसका ऐसा होगा। सेकेंड कंपोनेंट इज नीडल। ये जो यहाँ पे इंडिकेटर है डायल के, दैट इज कॉल्ड नीडल। थर्ड इज डायल, ये जो पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट है जिसके ऊपर मार्किंग्स किया गया है, दैट इज डायल। देन हेयर स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग, यहाँ पे होती है हेलिकल स्प्रिंग। हाउ इट वर्क्स आई विल लेट यू नो। ओके, third component is pinion and quadrant. Now you may get confused what is pinion and quadrant. Okay. So before explaining it, let me show you one video. So carefully watch it. I have recorded it from an application. Okay. So this is a 3D, I think, what is the name of the application? 3D engineering animation application available in Play Store. I have taken this from that application. So this is a pressure gauge. You can see the dial and needle from naked eye, but what is working behind it you cannot see. Okay, so let's explore it. Carefully watch the video. So these are the mechanism working behind the dial. Let me hide some covers so you get better idea. So I am hiding the dial. ये डायल का मैंने हटा दिया है, अब आप देख सकते हैं मैकेनिज्म क्लियरली। Let me remove some other parts also so you get better idea. So this is the actual mechanism working behind the dial. So now carefully see. Now you can see all the components. This is the needle.
और नीडल का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड विथ पिनियन। Let me zoom it. तो हियर यू कैन सी यहाँ पे नीडल है और नीडल का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में अभी हाईलाइट किया है दैट इज पिनियन। तो नीडल इज कनेक्टेड विथ पिनियन और पिनियन के साथ मैशिंग में ये पर्पल कलर का एक एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। This component highlighted right now is a quadrant, and you can see, let me zoom it once again. You can see on quadrant, on one side there are teeth formed. Okay, these teeth are actually in mesh with pinion. आप देख सकते हो ये पिनियन के साथ मैशिंग में है। तो अगर ये क्वाड्रेंट रोटेट होता है और रोटेट होता है तो ये पिनियन उसके मैशिंग में होने के वजह से पिनियन भी रोटेट होगा। एंड एट द एंड ऑफ अ क्वाड्रेंट वन एलिमेंट इज अटैच्ड, इट इज हाईलाइटेड एलिमेंट राइट नाउ, दैट इज कनेक्टिंग द एंड वन एंड ऑफ दिस बोर्डन ट्यूब। ये जो सिल्वर कलर का ट्यूब है सी शेप में दैट इज बोर्डन ट्यूब। तो एक एंड जो है यहाँ पे दैट इज कनेक्टेड विथ दिस एलिमेंट थ्रू दिस एलिमेंट विथ क्वाड्रेंट। Carefully see it. Now see the working, how this is working. Once again, you can see as soon as the pressure is applied on this bottom portion, जैसे ही मैं बॉटम में से प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ये बॉर्डन ट्यूब क्या है उसका ये वाला जो एंड है राइट साइड पे वाला दैट इज क्लोज्ड एंड और यहाँ पे नीचे जो होगा वो ओपन एंड होगा। तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ओवल शेप है। एंड इफ आई सप्लाई एयर और इफ आई प्रेशराइज दिस क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर अभी मैं अगर एयर ब्लो करता हूँ तो क्या होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन है ओवल शेप का दैट विल ट्राई टू बिकम सर्क्यूलर। ऐसा होना ट्राई करेगा। You have already seen this kind of tube in real life. Okay, you may have attended birthday parties. Okay, and you all have seen this device. जैसे ही आप यहाँ पे हवा ब्लो करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली क्या है, ये जो ट्यूब है वो कर्ल हुई है। As soon as you blow the air inside it, ये क्या होगा, ये स्ट्रेट होना ट्राई करेगा। तो जैसे ही मैं इसमें हवा भरता हूं तो इसमें प्रेशर जनरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इट्स क्रॉस सेक्शन ट्राइज टू बिकम सर्क्यूलर। सर्क्यूलर होने का ट्राई करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सी शेप होगा उसका, आई हैव शोन द क्रॉस सेक्शन ओवर हियर, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो ये क्रॉस सेक्शन अगर प्रेशराइज होता है तो वो सर्कुलर होना ट्राई करेगा और उसकी जो कर्वेचर है ट्यूब का वो चेंज होना ट्राई करेगा, जस्ट लाइक दिस व्हिसल। आप सब ने बर्थडे पार्टी में ये बजाया होगा। हम हवा ब्लो करते हैं यहाँ से तो ये इनिशियली जो कर्ल होता है वो स्ट्रेट होना हो जाता है। So the same principle we are using in this pressure gauge. बोर्डन ट्यूब का क्रॉस सेक्शन इनिशियली ऐसा होगा, उसकी वजह से इनिशियल कर्वेचर होगा। जैसे ही हम उसमें हवा भरेंगे तो ये जो कर्व है यहाँ पे, ये वाला कर्व
वो एक्चुअली स्ट्रेट होना ट्राई करेगा. लेट मी शो यू लाइक इट विल ट्राई टू बिकम लाइक दिस. ओके, उसका एंड यहाँ पे आ जाएगा. जो इनिशियली यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा. स्ट्रेट होना ट्राई करेगा. ओके, पूरा का पूरा अनवाइंड नहीं होगा प्रेशर गेज में जैसा सही होता है, बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इट ओनली. पूरा का पूरा स्ट्रेट नहीं होगा बट डिफ्लेक्ट होगा. यू कैन से इट. क्लोजली ऑब्जर्व इट. जैसे ही हम प्रेशर सप्लाई करते हैं तो ये वाला हैंड जो राइट साइड पे एंड है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए. अभी प्रेशर सप्लाई हो रहा है. So it will try to deflect upside, and its deflection will be transferred to needle through these mechanisms. Okay, first of all क्या होगा, जैसे ही ये वाला एंड ऊपर जाएगा तो ये एलिमेंट भी उसके साथ ऊपर जाएगा. तो ये क्वाड्रेंट जो है उस वो डिफ्लेक्ट होगा, एंड बिकॉज इट्स ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन द पिनियन विल रोटेट. और पिनियन के साथ नीडल कनेक्टेड है, तो पिनियन अगर रोटेट होगा तो नीडल भी उसके साथ रोटेट होगा. सी लाइक दिस. नाउ एज सुन एज आई रिलीज द प्रेशर, जब मैं प्रेशर रिलीज कर दूंगा तब क्या होगा, ये जो हेलिकल स्प्रिंग है, सॉरी टॉर्शनल स्प्रिंग है, नीडल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ला देगी ऐसे. यू कैन सी हियर. आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये एंड डिफ्लेक्ट होता है ये पिनियन रोटेट होगा क्वाड्रेंट की वजह से. लुक एट द क्वाड्रेंट मोशन, and this needle will indicate the pressure. You see this end of the Borden tube is actually closed. You see in this picture right now. This end is closed. See here. And the end at the bottom is actually open, जहाँ से एयर सप्लाई होती है, प्रेशराइज होता है. यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन इज ओवल शेप. इसके अंदर प्रेशर जाएगा तो ये सर्कुलर होना ट्राई करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी दिस एंड विल गेट डिफ्लेक्टेड. So this is how a pressure gauge works, or the mechanism behind the pressure gauge works. And this is the construction and working, the thing that I just explained to you. So I'm not going to read it. मैंने जितना आपको बताया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. Next component is water level indicator, or next mounting is a water level indicator. Now where it is located, कहाँ पे located होता है? If you see in all the boilers, अब कोई भी बॉयलर ले लीजिए, हमने जो 3 डिटेल में देखे है उसमें से कोई भी बॉयलर ले लीजिए, उसमें वाटर लेवल इंडिकेटर का ये लोकेशन फिक्स रहेगा. कहाँ पे आएगा? इट विल बी इंस्टॉल्ड एट द इंटरफेस ऑफ स्टीम एंड वाटर. वाटर और स्टीम का जो इंटरफेस रहेगा वहीं पे ही इंस्टॉल होगा वाटर लेवल इंडिकेटर. आप किसी भी बॉयलर में देख लीजिए. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लैंकशायर बॉयलर में. इज इंस्टॉल्ड एट द इंटरफेस ऑफ स्टीम एंड वाटर. Now why this is so, that will look. Its function is it indicates the water level inside the boiler vessel.
and it shows the level of water in boiler drum, you can say. So this is the actual water level indicator. You can see the markings. The unit will be unit of volume. Okay, here water is filled, so unit will be in liter. Liter will be there, and this is the mechanism of the water level indicator. Many components you see. First of all, concentrate. The left part is inside the boiler and right portion is outside the boiler. So inside the boiler you can see the water space and steam space, and water level indicator is installed at the interface of these two. And why this is so, I will explain you in this portion. First, let's have a look at the components. Then a steam coke is there. Okay, by opening and closing, by opening this steam coke, we can supply the steam to this glass tube, and by closing the steam coke, we can separate this steam space from this level indicator. On bottom, you can see a water coke. Okay, by opening this water coke, we can supply the water to this glass tube, and by closing it, we can cut off the supply of water to this glass tube. Okay, ग्लास ट्यूब की बात करता हूँ, ग्लास ट्यूब के अंदर स्टीम और वाटर लाने के लिए. Then a ball valve is placed over here. What is the use of it? I will explain to you. And drain coke. अगर मुझे बॉयलर का दिस वाटर लेवल इंडिकेटर का मेंटेनेंस करना है, okay, उसके लिए वो ट्यूब पूरा खाली करना है, तो उसके लिए ये ड्रेन कोक दिया गया है. By opening this drain coke, we can empty this glass tube. One glass tube is there like this. उसके ऊपर पूरा मार्किंग होगा, कितना लेवल है वो सब. And a stuffing box. So these are the components of a water level indicator. Now, how this thing works? First of all, we will, okay, suppose first let's talk about the location, why it is located at the interface of this. So suppose यहाँ पे बॉयलर ड्रम है, okay, यहाँ तक वाटर है, उसके ऊपर स्टीम है. Suppose I install the water level indicator over here. यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ अगर मैं वाटर लेवल इंडिकेटर, तो क्या होगा, यहाँ ऊपर से पानी जाएगा, नीचे से भी पानी जाएगा, यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से भी वाटर फ्लो होगा इनसाइड द वाटर लेवल इंडिकेटर. तो क्या होगा, ये जो पूरा ग्लास ट्यूब है, ये पूरा ग्लास ट्यूब वाटर से भर जाएगा, पानी से भर जाएगा. अब अगर पूरा का पूरा ट्यूब पानी से भरा हुआ है, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द लेवल? उसका लेवल कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? अगर ये पूरा का पूरा पानी से भरा होगा तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा कि लेवल कितना है. नाउ एज्यूम अनदर केस. दिस इज द वाटर लेवल एंड दिस इज द स्टीम स्पेस. अगर मेरा वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल होता है स्टीम स्पेस में, तब क्या होगा, यहाँ से स्टीम जाएगी, यहाँ से भी स्टीम जाएगी, तो ये जो पूरा ट्यूब है वो स्टीम से भर जाएगा, के अंदर पूरा का पूरा स्टीम आ जाएगा. ओके, नाउ दिस विल इंडिकेट कि अंदर का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा मालूम पड़ सकता है. बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्ट लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा स्टीम होगा, हम रीडिंग ही नहीं ले पाएंगे. रीडिंग कैसे लेते हैं? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाल कलर का है, तो हम देख सकते हैं कि 10 प्लस समथिंग लीटर अंदर है. लाइक एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरफेस दिखेगा, एक सरफेस दिखेगा, तभी आप उसको रीड कर पाओगे. ओके, लाइक कितना है, या 30 है, 25 है, कितना है,
अगर आपको एक इंटरफेस चाहिए रीडिंग लेने के लिए, तो दैट इज वाई इट इज इंस्टॉल एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड स्टीम। तो अब क्या होगा, यहाँ ऊपर से स्टीम फ्लो होगा और नीचे से वाटर फ्लो होगा। सो नाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इंटरफेस, लाइक वाटर है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, तो हम रीडिंग ले सकते हैं कि अंदर कितना लीटर वाटर है वो हम रीड कर सकते हैं। So that is why the logical position of water level indicator is at the interface of steam and water space. So that was about location of water level indicator. So now let's have a look at how it works. तो जैसे ही मैं ये स्टीम कॉक है वो ओपन करूंगा, यहाँ से स्टीम फ्लो होगी और नीचे से वाटर फ्लो होगा, एन इंटरफेस विल फॉर्म and I will get the reading of water level inside the boiler. अभी क्या होता है, okay, so reading तो ले लिया, but suppose accident happens. Look what is happening over here and here. See, suppose accidentally, let me highlight it all. एक्सीडेंटली ये जो ग्लास ट्यूब है वो ब्रेक हो जाती है। कि कई बार ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है कि बॉयलर के साइड में से अगर हैवी इक्विपमेंट पास हो रहा है तो उसका टच हो जाने की वजह से भी ये ग्लास ट्यूब टूट सकता है। तो अगर ये टूट जाता है, सपोज दिस ग्लास ट्यूब ब्रेक्स, तो क्या होगा, ये कॉक तो ओपन है, दोनों कॉक ओपन है, और यहाँ पे स्टीम जो है वो कौन सी है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम। तो वो सारी स्टीम और वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे विथ प्रेशर। ओके, पूरा प्रेशर से निकलेगा बाहर। सो बाहर जो भी कोई वर्क कर रहा होगा उसको हार्म होगा, उसका डेथ भी हो सकता है, बिकॉज ये गर्म होता है एज वेल एज प्रेशराइज्ड होता है, तो वो पूरा ब्लास्ट हो सकता है। So to avoid that kind of situation, this safety measure is taken. Ball valve is installed in this water level indicator. तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ग्लास ट्यूब टूट जाता है तो यहाँ से ये जो स्टीम जा रही है वो कैसे होगी, हाई प्रेशर पे होगी। तो अगर हाई प्रेशर से हम उसको फ्लो होने का पाथ दे देते हैं तो वो एकदम स्पीड से बाहर निकलता है। यहाँ से वाटर भी एकदम स्पीड से बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो बॉल वाल्व रखा होता है उसको धक्का लगेगा, यहाँ से स्टीम का धक्का लगेगा और यहाँ से वाटर का धक्का लगेगा, एंड दिस बॉल will be pushed towards the opening। यहाँ पे जो ओपनिंग है उसके अगेंस्ट वो पुश होगा। So you can see with the help of this ball the opening is actually obstructed। ओपनिंग है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो अगर ये ग्लास ब्रेक हो जाता है तो दिस बॉल वाल्व इज एक्ट एज अ सेफ्टी मेजर। तो ये जो स्टीम है वो बाहर निकलने से हम रोक सकते हैं। Okay, so this is why the ball valve is installed in the water level indicator. Now, suppose I want to carry out the maintenance work. अगर मेंटेनेंस वर्क कैरी आउट करना है इस वाटर लेवल इंडिकेटर का तो कैसे करेंगे, विल फर्स्ट क्लोज दी स्टीम कॉक एंड वाटर कॉक, दोनों को बंद कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर एंड स्टीम सप्लाई हो रहा है वो कट ऑफ हो जाएगा। देन आई कैन ओपन दिस ड्रेन कॉक, तो यहाँ से स्टीम और वाटर जो है वो ग्लास ट्यूब में था वो पूरा बाहर निकल जाएगा। देन वी कैन कैरी आउट दी मेंटेनेंस वर्क, उसका जो ग्लास होगा अंदर से हम साफ कर सकते हैं लाइकवाइज। सो दैट इज वाई दिस ड्रेन कॉक इज provided on the water level indicator.
So this is how this device works. So today we have seen what is boiler mounting and what is boiler accessories. We have looked at the names of different mountings and accessories, and we have discussed two mountings. One is pressure gauge and one is water level indicator. We will continue in next lecture from steam stop valve. We will stop over here.